قرآن میں اللہ نے ایک ایسی ہستی کا ذکر کیا ہے جس کا نام نہیں بتایا، صرف اتنا کہا ہے کہ یہ اللہ کا ایک خاص بندہ ہے جسے اللہ نے اپنی خاص رحمت دی اور اپنا ایک ایسا خاص علم دیا جو کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ پھر اللہ نے بتایا حضرت موسیٰ جو ڈائریکٹ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، جو بنی اسرائیل کے سب سے عظیم پیغمبر تھے، جنہیں اللہ کی طرف سے فرعون سے ٹکرانے کی ہمت ملی، وہ بھی اس شخص کے پاس علم سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تین باتیں ہوئی، ایک کشتی توڑی گئی، ایک بچہ مارا گیا اور ایک دیوار ٹھیک کی گئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر واقعے کے اوپر حیران ہو گئے۔ جب جانے کا وقت آیا تب اس ہستی نے سب باتیں سمجھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا لگا کہ جو چیز دکھنے میں بری ہوتی ہے وہ اندر سے کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ یہ ہستی کون تھی؟ اسکالرز نے اس ہستی کو حضرت خضر کہا ہے اور تب سے ایک سوال شروع ہوا جو 1400 سال سے ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ حضرت خضر کا نام سنتے ہی دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلی کیوریوسٹی، دوسری کنفیوژن، کیونکہ جتنے اسکالرز نے لکھا اتنی ہی الگ الگ رائے ہیں اس بارے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، وہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ولی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں۔ وہیں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ دریا کے کنارے ملتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ مسافروں کی مدد کرتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ وہیں بہت سے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں ہیں، حقیقت سے اس چیز کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس ہستی کے اوپر اتنا اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن نے انہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، اور احادیث کے اندر جو ان کے بارے میں ملتا ہے وہ اتنا عجیب ہے کہ اسکالرز کسی ایک رائے کے اوپر آ ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک چیز ہے جو سب اسکالرز نے مانی، وہ یہ کہ یہ ہستی کوئی آرڈینری ہستی نہیں تھی، کچھ خاص تھا، کچھ ایسا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ہم اس ٹاپک کا خلاصہ کریں، قرآن سے، حدیث سے اور ان اسکالرز کی باتوں سے جنہوں نے پوری زندگی صرف اس ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے میں نگاہ دی۔ پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہیں کون؟ قرآن نے انہیں کوئی نام نہیں دیا۔ سورہ کہف کے اندر صرف ایک ذکر ملتا ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ۔ یہ لائن دیکھنے میں تو بہت ہی سیدھی سی لگتی ہے لیکن اتنی سیدھی اور سمپل ہے نہیں۔ عبدن کا ورڈ قرآن کے اندر بندے کے لیے یوز ہوا ہے، اور یہ لفظ قرآن کے اندر صرف خاص لوگوں کے لیے یوز کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے۔ تو جب حضرت خضر علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ ورڈ یوز کیا، اسکالرز نے اسی چیز سے اندازہ لگایا کہ یہ شخص کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی قرآن میں آگے ذکر ملتا ہے ہماری طرف سے رحمت، اور ہم نے اسے اپنے خاص علم میں سے علم دیا، اور یہ وہ علم ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو ڈائریکٹ اللہ سے ملا، کسی قسم کی کتاب میں سے نہیں، کسی ٹیچر سے نہیں، کسی تجربے سے نہیں، اور ایسا علم ملا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور یہی وجہ تھی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص سے ملنے کا کہا۔ اگلا سوال، کیا حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس میں اسکالرز کا سب سے زیادہ اختلاف ہے۔ امام نووی جو صحیح مسلم کی شرح کے لیے جانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جمہور یعنی اکثر اسکالرز کا ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک نبی تھے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ جس علم کا ذکر اللہ نے کیا وہ صرف نبیوں کو دیا جاتا ہے، ولیوں کو ایسا علم نہیں مل سکتا۔ اور ایک اور بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک نبی تھے، انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی اتباع کی، ان سے سیکھا۔ ایک نبی ہی دوسرے نبی سے سیکھتا ہے، ڈیفینیٹلی کسی عام انسان سے نہیں۔ لیکن دوسری طرف ابن خلدون جو کہ 14 سینچری کے سب سے بڑے مسلم ہسٹورین اور فلاسفر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، وہ بالکل ایک ولی تھے، اور ان کو اتنا خاص مقام ان کی روحانی پریورٹی سے ملا۔ ان دونوں اسکالرز کے پاس دلیلیں ہیں اور دونوں ہمارے لیے ریسپیکٹڈ اسکالرز ہیں، لیکن پھر بھی یہ بحث آج تک ختم نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن کے اندر ہی اس شخص کے بارے میں، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کوئی ڈائریکٹ ریفرنس نہیں ملتا۔ شاید یہی ریزن ہے کہ ہم اس جواب کے اوپر صحیح سے پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ اس ڈسکشن سے زیادہ امپورٹنٹ وہ کام تھا جو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام قرآن کے اندر کلیئرلی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتا لگا کہ دنیا کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دیا گیا، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈیسائیڈ کیا میں اس شخص کو ڈھونڈوں گا۔ صحیح بخاری بک نمبر 60 اینڈ حدیث نمبر 249، اس حدیث میں اس پوری کہانی کی ڈیٹیل موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم کے ساتھ نکلے، ان کے پاس ایک میلی مچھلی تھی جو کہ ایک نشانی تھی کہ جہاں پہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں اسی جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دو دریاؤں کے بیچ میں پہنچے اور اس جگہ پر آ کر مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گر گئی۔ اسی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام ملے، ایک عجیب اور نورانی شخص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ریکویسٹ کی کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ آپ کے علم سے میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں کوشش کروں گا۔ اس کے اوپر حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے، کوئی سوال مت کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ 3 واقعات ہوئے اور تینوں
तीनों बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि तीनों बार जो हुआ वो आंखों से देखकर बहुत ही अजीब और गुनाह लग रहा था। अब बात करते हैं उन 3 वाकयात की। पहला वाकया, कश्ती। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरिया में सवार हुए। कुछ लोगों की कश्ती थी। सफर शुरू हुआ और बीच सफर में बिना किसी वजह के हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कश्ती के बीच में एक सुराख कर दिया, एक छोटा सा सुराख जो कि काफी था कि कश्ती के अंदर पानी भर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा, ये क्या किया? ये लोग हमें बेदार करके अपनी कश्ती में लेकर आए और आपने उन्हें डूबने दिया। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने कहा था ना कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माफी मांगी। सफर जारी रहा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में अभी भी वही सवाल था कि आखिर कश्ती क्यों तोड़ी। वो इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे। आंखों ने जो देखा वो बुरा था, लेकिन आंखों ने जो नहीं देखा वो ये था कि आगे रास्ते में एक जालिम बादशाह मौजूद था जो लोगों की कश्तियां जबरदस्ती छीन लेता था। और डेफिनेटली टूटी हुई कश्ती छीन के वो क्या ही करता। टूटे होने की वजह से वो कश्ती बच गई। एक छोटा सा नुकसान जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने किया वो उन कश्ती वालों के लिए नुकसान का बायस नहीं बना, बल्कि उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। दूसरा वाकया, एक बच्चा। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम रुके और एक बच्चे को मार दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बार ज्यादा नाराज हुए कि आखिर एक मासूम बच्चे को क्यों मारा, वो भी बिना किसी रीजन के। ये तो हद से भी बुरा है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने फिर से वही बात बोली, मैंने कहा था ना कि सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से माफी मांगी और सफर शुरू किया और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो वो अपना रास्ता अलग कर लेंगे। वो बच्चा वो था जिसकी परवरिश में आगे चलकर उसके माँ बाप कुफर का रास्ता इख्तियार कर लेते और इस बच्चे के मरने के बाद अल्लाह ने उसके वालिदैन को एक नेक औलाद अता करनी थी। वो मौत जो आंखों को जुल्म लगती है, दर हकीकत वो असल रहमत होती है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने जो देख लिया था वो सिर्फ वक्ती नहीं था। उन्होंने उस बच्चे की पूरी जिंदगी स्कैन कर ली थी। उस बच्चे के माँ बाप का दर्द था, उनका ईमान था, और ये ऐसा इल्म डायरेक्टली अल्लाह की तरफ से ही मिल सकता है, वक्त के पार देखने वाला इल्म। तीसरा वाकया, एक दीवार। हजरत मूसा और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम एक शहर में पहुंचे। लोगों ने उन्हें खाना नहीं दिया, मेहमान नवाजी नहीं की, और वहाँ पे एक गिरती हुई दीवार थी। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम वहाँ पर रुके और अपने हाथ से उस दीवार को सीधा कर दिया। किसी किस्म के कोई पैसे भी नहीं लिए इस काम के, ना ही चाहा कि लोग उनका शुक्रिया अदा करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि कम से कम कुछ मांग ही लेते, हम काफी दिनों से भूखे हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब यहाँ से हमें अलग होना पड़ेगा, लेकिन पहले ये बताता चलूं कि इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना मौजूद था। अगर ये दीवार गिर जाती तो जालिम लोग उस खजाने के ऊपर कब्जा कर लेते। मैंने ये दीवार इसलिए सीधी की कि जब भी वो बच्चे बड़े होंगे उनका हक उनको मिल पाए। तीसरा काम भी बिल्कुल ऐसा था कि जो आंखों को अजीब लग रहा था, लेकिन इस काम के अंदर भी रहमत थी। ये अल्लाह का हुक्म था। एक लाइन, एक छोटी सी लाइन, लेकिन इस लाइन ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो राज खोला जो आज भी स्कॉलर्स के लिए पूरी तरह बंद नहीं हुआ। अब एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से मुस्लिम स्कॉलर्स को, मुस्लिम उलमा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि हाँ, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा हैं। वहीं कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि नहीं, वो वफात पा चुके हैं। और दोनों तरफ के लोग जो डिवाइड हुए हैं वो कोई आम लोग नहीं है, बहुत ही खास और बड़े बड़े नाम है। इमाम नवावी जो कि सही मुस्लिम की शरह के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ये चीज मेंशन की कि बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अभी भी मौजूद हैं इस दुनिया में। इब्ने हजर अल अस्कानी जो कि सही बुखारी की शरह के लिए मशहूर हैं, उन्होंने भी अपना यही स्टांस रखा कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। और शाह वलीउल्लाह देहलवी जो सब कॉन्टिनेंट्स के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर हैं, जिन्हें पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमान बहुत खास इज्जत देते हैं, उन्होंने भी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के जिंदा होने का जिक्र किया। ये कोई आम सी बात नहीं, ये वो स्कॉलर्स हैं जिनकी किताबें आज भी मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो जब ये लोग ऐसी बात करते हैं तो बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर ईमान भी रखते हैं, इसको मानते भी हैं। अब बात करते हैं कि जिंदा होने की दलील क्या है। पहली दलील, हदीस में आता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दज्जाल के टाइम में सामने आएंगे और दज्जाल को रोकने की कोशिश करेंगे। अगर वो पहले ही वफात पा चुके हैं तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। दूसरी दलील जो कि मेरे सामने इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत से औलिया और बुजुर्गों का ये मानना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। हजरत ख्वाजा महियुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले, उन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। इमाम अहमद इब्ने इदरीस 19वीं सेंचुरी के बहुत बड़े स्कॉलर, उन्होंने भी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात का दावा किया। ये दावे इतने ज्यादा हैं और इतने अलग अलग जमानों में और अलग अलग जगहों से हैं कि इन्हें डिसमिस करना थोड़ा मुश्किल है। तीसरी दलील, बहुत सी जगहों पे ये लिखा हुआ मिलता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जुम्मे की रात काबा का तवाफ करते हैं। अगर ये चीज भी बिल्कुल ठीक है तो शायद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है। इब्ने हजर ने भी इस
बात को अपनी किताब में लिखा है। अब बात करते हैं इमाम बुखारी की, जिन्होंने अहादीस की सबसे ऑथेंटिक कलेक्शन को कंपाइल किया। उनका ये मानना है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है। उनकी दलील ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, आज रात जो लोग जमीन पर हैं 100 साल बाद इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ये बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से कुछ साल पहले की थी। इमाम बुखारी का इस हदीस को लेकर ये मानना है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अगर जिंदा भी होते तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर प्रॉपरली मेंशन करते कि 100 में से एक बंदा होगा जो नहीं मरेगा, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। तो अगर वो जिंदा थे तब तक, तो इस हदीस के बाद वो वफात पा चुके होंगे। इब्न अल जावजी 12th सेंचुरी के बड़े हम्बली स्कॉलर, वो भी इमाम बुखारी की इसी राय के साथ थे। और इब्न खल्दुन ने जो बात बोली वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। उन्होंने कहा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जिंदा होने की जो कहानियां हैं वो सिर्फ सूफी ट्रेडिशन से आती हैं और इन कहानियों को ऑथेंटिक मानना थोड़ा मुश्किल है। और ये भी एक वैलिड और ऑथेंटिक स्कॉलर है। दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी जगह पर सोच के ही कुछ बोल रहे हैं। और यही ऐसा राज है जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी को 1400 साल के बाद भी जिंदा रखता है। किसी के पास कोई फाइनल जवाब नहीं है। अगर कोई उनकी 100 दलीलें लेकर आए कि वो जिंदा हैं, वहीं कुछ स्कॉलर्स उनकी 100 दलीलें लेकर आएंगे कि वो वफात पा चुके हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या नहीं, ये एक लंबी बहस है और जो स्कॉलर्स कर रहे हैं और वो करते आएंगे। लेकिन अगर हम एक लम्हे के लिए मान ले कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, तो पहला सवाल ये ज़हन में आता है कि कहाँ पे हैं? कोई शहर, कोई जंगल, कोई पहाड़? इस्लामिक लिटरेचर में इस सवाल का जवाब थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है और हैरान करने वाला है, क्योंकि इस बात का जवाब एक जगह से किसी एक रिसोर्स से नहीं आया। हजारों सालों से अलग अलग लोग अलग अलग जमाने में अलग अलग जगहों पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को देखने का दावा कर चुके हैं। दरिया के किनारे, समुंदर के पास, किसी तन्हा मुसाफिर की मदद करते हुए, किसी को रास्ता दिखाते हुए। लेकिन एक चीज जो मल्टीपल टाइम आई, पानी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम ही हरा है अरबिक में, और इस्लामिक ट्रेडिशंस में ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का कदम पड़ता वो जगह हरी भरी हो जाती। कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि उनका खास रिश्ता पानी से है। दरिया, समुंदर, नदियाँ, ये वो जगह हैं जहाँ पे उनको देखने की कहानियां सदियों से चलती आ रही हैं। वो नजर क्यों नहीं आते, वो सामने क्यों नहीं आते अगर वो जिंदा हैं? ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो जिंदा भी हैं तो छुपे हुए क्यों हैं? लॉजिकल क्वेश्चन है ये। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है और सूफी ट्रेडिशन से सामने आने वाली बातों से पता लगता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सिर्फ उनको नजर आते हैं जो खास तवज्जो लगाते हैं और अल्लाह की तरफ से जिनके ऊपर कुछ रहमत उतर रही हो। अब ये सारी बातें ज्यादातर सूफी ट्रेडिशन से आ रही हैं, इसलिए ये कितनी ऑथेंटिक है ये हम सब ही जानते हैं। और सूफी ट्रेडिशन से जितने भी लोग हैं उनका ये मानना है कि वो आम लोगों को नजर आ ही नहीं सकते। कुछ औलिया ने ये भी एक्सप्लेन किया कि उनके साथ मुलाकात एक इम्तिहान की तरह होती है, उस वक्त जब इंसान उस इम्तिहान के लिए तैयार ही नहीं होता और वो शख्स हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के सामने होते हुए भी उन्हें पहचान नहीं सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में भी यही चीज मौजूद है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे। मतलब मुलाकात के लिए सिर्फ मौजूदगी जरूरी नहीं है, एक खास किस्म की तैयारी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात जो कहना बहुत ही जरूरी है और जो बहुत से लोग मिस करते हैं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का दावा और सच में उनसे मुलाकात करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस मुलाकात के दावे को गलत तौर पे यूज किया, अपने आप को खास या अल्लाह का वली साबित करने के लिए। इमाम अहमद बिन हम्बल जो कि हम्बली फिक्स से हैं, उन्होंने एक बार कहा कि अगर कोई शख्स आकर ये कहे कि उसे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से कोई हुक्म मिला है जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो, तो समझ लो कि वो शख्स आपको 2 नंबर तरीके से बहकाना चाह रहा है, इस्लाम का हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का यूज करके। क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं? टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं जानता। बहुत से स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं जिंदा है, बहुत से स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं जिंदा। ज्यादा ऑथेंटिक जो बात लगती है वो ये लगती है कि वो जिंदा नहीं है, वो वफात पा चुके हैं। लेकिन इस सारी कहानी में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का इल्म, ऐसा इल्म जिसे सीखने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद नबी होकर सीखने के लिए गए। और ये समझना भी जरूरी है कि ताकत सिर्फ इल्म में नहीं है, सब्र में भी होती है। और हकीकत सिर्फ वो चीज नहीं होती जो आंखें देख रही होती है। समटाइम्स कुछ बहुत ही गहरा और डीप होता है किसी भी वाकये के पीछे जो हमारी आंखें देख नहीं पाती। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा है या नहीं ये सवाल छोड़ दें, लेकिन जो लेसन हमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये से मिला वो आज भी जिंदा है और आने वाले वक्त में भी जिंदा रहेगा। सब्सक्राइब।